کہ جو ایک مٹھی بھر جماعت یہودی صفت جو ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، وہ جماعت ہے RSS، جس کا ہر ادارے میں دخل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سارے ادارے اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، CBI ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب حکومت کے لیے دست و بازو ہیں، اور جب ان میں کوئی اپنی شخصی کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، میرا دل آج بھی مطمئن ہے۔ میں نے بزرگوں کے اقوال پڑھے، ایک بہت پیارا قول فرمایا ایک بزرگ نے کہ کفر کے ساتھ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی۔ کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لمبے دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ، ظلم بہت لمبی عمر نہیں پاتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانی خون سے دریاؤں کو لال کر دیا، زمینوں کو اتنا سرخ کر دیا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ اس میں بھیگنے لگ دیں۔ یہ سارے ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے بڑے بڑے ظالم آئے دنیا میں، لیکن دنیا نے ان کا حشر بھی دیکھا، ان کا انجام بھی دیکھا، جو بہت ہی معمولی سی طاقت سے فنا ہو گئے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج جو ظالم تخت پر بیٹھے ہیں، مولا انہیں بھی عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو ہم ضرور دیکھیں گے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، میں اسلام کا عدلیہ نظام پہلے پیش کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اے رسول، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فرمائیں، عدل کے ساتھ فرمائیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت آپ جانتے ہیں اسلامی عقائد کے اعتبار سے کہ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی شریعت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے اسلامی عقائد کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں لوگوں کے لیے جائز فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز فرما دیں، لیکن انصاف کا تقاضا جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عدل کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں، حتیٰ کہ واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں۔ الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھرے اترو، پورے کے پورے کھرے اترو جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو۔ اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے۔ قرآن کہتا الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے، پکارے جائیں گے۔ اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ، وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، قاضی القضات کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اقتداء کر رہے ہیں آج تک۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں ہوں، قاضی بننے کے لائق نہیں۔ اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی۔ خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا، آپ حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ فقہ کے امام ہیں،
कुरान और हदीस से मसाइल इस्तेंबात करते हैं, आप काजी के लायक नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदब से कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अब आप ही फैसला कर लें, आपकी नज़र में अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठे को काजी कैसे बना सकते? अगर आपकी नज़र में मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर झूठ बोलने वाले को तो काजी बनाना ही नहीं चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साहबजादे वो काजी थे। जिंदगी पर इमाम अहमद बिन हम्बल उनके घर में नहीं जाते थे, इसलिए कि वो डरते थे कि कहीं इसने इंसाफ में कहीं ऊंच नीच ना कर दिया। हालांकि वो अदल का वो जमाना था जहां सहाबा इकराम का माहौल तो ये था कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा के दरमियान खड़े हैं तो सहाबी को पूछने का हक था कि आपका जुब्बा इतना लंबा कैसे हो गया, दूसरों का इतना नहीं बना है। कपड़े सबको तकसीम हुए थे, जो माले गनीमत में आए थे आपको भी मिले थे, आपका बड़ा हो गया, हमारा सबका नहीं बना। ये सवाल करने का हक भी सहाबा को अल्लाह के नबी ने दिया था कि इस्लाम जिस जमहूरियत का कायल है वो ये जमहूरियत नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। यहां पर ये एक तरफा निजाम है। मेरे अजीजों, अब मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, जिस प्यारे वतन में हम रह रहे हैं, इस भारत में, यहाँ के सारे जो कवानीन थे इसे बदलने की नापाक कोशिशें फिर से जारी हो गई हैं। अंग्रेजों का जो दौर था 200 साला, उसमें इतना जुल्म नहीं था जितना आज की हुकूमतों के दरमियान है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ तास्सुब है, सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीज इनके सीनों में उबल रहे हैं और सिर्फ ये एक तरफा सरमायादाराना निजाम चाहते हैं। मैं यहां खुल करके कहना चाहूंगा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आज जो हुकूमतों पर बैठे हैं लोग इनको इस तरह से पेश कर रहे हैं, बल्कि वो मुद्दा हासिल करना चाहते हैं हम एंटी मुस्लिम हैं। हकीकत में ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, हिंदू बिरादरी में से दलित तबके के भी सबसे ज्यादा दुश्मन यही है। दलित तबका भी आज बेदार हो जाए, वरना वो फिर 2000 साल पहले वाली जिंदगी में वापस जाएंगे। मैं ये बारहा कई दिनों से कह रहा हूं, आज इंसाफ के खून को, इंसाफ की कुर्सियों का ऐसा खून कर दिया गया है कि पूरी दुनिया इस पर शर्मिंदा है। आज पूरी दुनिया शर्मिंदा है। हालात एक दो नहीं मेरे अजीजों, यहां पर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने वाले आज खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको गर्व है, फख्र है, हमने गिराया था, और कोर्ट कह रही है नहीं, इनमें से कोई गिराया ही नहीं था। मुजरिम कह रहा है मैंने गिराया है, और कोर्ट कह रही नहीं, जाओ तुम्हें माफ है। यह है अदल का निजाम। ये ढकी छुपी बातें होती तो मैं यहां मिंबर पर नहीं कहता। ये बातें ये नेता उन चैनल्स में कह रहे हैं जिनको करोड़ों लोग देखते हैं। न्यूज चैनल्स में ये खुद अलल ऐलान बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको गर्व है, फख्र है, हम 92 में हम गिराने गए थे। बाज न्यूज एंकर्स ने उनको सवाल भी किया, ऐसा तो नहीं कि ये एक साजिश थी? उन्होंने कहा साजिश नहीं थी ये, और अचानक नहीं हुआ था, ये पूरा प्री प्लान हुआ था। उसके बावजूद हमारी अदालत कह रहे नहीं, ये निर्दोष। मेरे अजीजों, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जो गिराने के लिए आए थे, ना वो जमीन से थे ना आसमान से थे, पता नहीं कोई तीसरी मखलूक आकर के गई। शायद जजों को ये बताने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में एक तीसरी मखलूक भी रहती होगी जिसको कोई देखता नहीं, इसलिए कि ये अपनी कुर्सी के सामने पट्टी बांधा हुआ एक मुजस्समा रखते हैं, मूर्ति रखते हैं। शायद जिस जज ने फैसला दिया वो फैसला देने के वक्त भी पट्टी बांधा हुआ होगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये इंसाफ का खून नहीं है तो और क्या है? जिन्होंने देखा डेमोलिश होते हुए वो आज मौजूद हैं, जो फोटो ले रहे थे वो आज मौजूद हैं, जो वीडियो बना रहे थे वो आज मौजूद हैं, और जो वहां पर स्टेज लगा करके भड़का रहे थे वो भी मौजूद हैं। अच्छा, वो इनकार कर रहे हैं? इनकार भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमने किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी अलल ऐलान कहा कि ये एक बहुत गर्व का काम किया गया था 92 में। वाह, हमारी अदालत को देखें, ये हमारी अदालतें हैं आज, ये खुद कहती हैं कि नहीं ये निर्दोष है, इनमें से कोई भी एक भी मुजरिम नहीं साबित हुआ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तारीख के पूरे दास्तानों में ढूंढ करके निकालो, इतना बड़ा जुल्म कहीं नजर नहीं आएगा। मैं एक
चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये लिखा है कि अब 90% सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जिनका हुकूमत से गहरा ताल्लुक हो, जबकि आदलिया के निज़ाम में यह है कि जमहूरियत में काजी को मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए, मुंसिफ को और जज को उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, ना प्राइम मिनिस्टर का ना सदर जमहूरिया का, वह आज़ाद इदारा होना चाहिए। यह जमहूरियत में है, डेमोक्रेसी के उसूल में मौजूद है कि आज़ाद इदारा है अदलिया, इस पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं बहुत सारे और वकला भी हैं जो खुल करके इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 90% अब यह अदलिया का निज़ाम या कुर्सियों पर उनको रखा जाता है जो अटॉर्नी जनरल के रिश्तेदार हों या पुराने जजों के रिश्तेदार हों या जिनका हुकूमत से गहरा संबंध हो, गहरा ताल्लुक हो। मार दिया गया है जमहूरियत को, और अगर आज हम बोलें तो यकीनन हमारे ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे। ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है और देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ नहीं, हम जरासीम के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बैक्टीरिया जो मुल्क को खत्म करने जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। अदल के मानों को आप समझ नहीं पाए तो अदल की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, एक दरिंदगी की हद होती है मेरे अजीजों। जो सबसे आला किस्म का इदारा था हिंदुस्तान का, भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट, वहां के जज ने डील कर लिया पहले से। जैसे कहते ना, मन तुरा हाजी बुगोयम तू मुरा हाजी बुगो, मैं तुझे हाजी साहब बोलता हूं, तू मुझे हाजी साहब बोल, मैं तुम्हारे हक में फैसला सुना दूंगा, मंदिर बना लो, और जैसे रिटायर्ड हो जाऊंगा तुम मुझे पार्लियामेंट में पहुंचा दो। हुआ कि नहीं हुआ? और दुनिया देख रही है। लेकिन हैरत की बात यह है मेरे अजीजों, अब भारत की जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की पब्लिक है, हिंदुस्तानी अवाम है, इनके अंदर अब वो जज्बे नहीं रह गए। ये जुल्म को सहने की आदत डाल चुके हैं। अगर जुल्म को सहने की आदत डाल चुके, नहीं डाले होते तो इतने सालों तक खामोश बैठे भी नहीं होते। ये तो मस्जिद के मामले को ये उठा करके यूं कहेंगे ये हिंदू मुस्लिम है, ये भड़काऊ भाषण देते, इनकी बात ना सुनो। मेरे अजीजों, आओ मस्जिद को एक तरफ रखो। अल्लाह ताला ने पूरी रोए ज़मीन को हमारे लिए मस्जिद बनाया है, हम जहाँ चाहे सजदा कर सकते हैं। ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। तुम एक मस्जिद गिराए हो, लेकिन सजदों की तड़प तो हमारे पेशानियों से छीन तो नहीं सकते। तुम 1000 मंदिर बना लो, क्या कभी राम ने अपनी तालीमात में यह कहा है? तो मुझे साफ बता दो कि हर जगह जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उसे ढा करके हमारी मूर्तियाँ बनाओ। कहीं हिंदुओं की तालीमात में से ला करके दिखाते, कहीं ला करके दिखाते। राम को जिस तरह से पेश किया जाता है वो तो है ही नहीं जो तुम आज पेश कर रहे हो। हिंदुओं की तालीमात में भी कहा गया है जुल्म को खत्म करने वाले का नाम राम था। तो क्या यही है जहां पर जुल्म की बुनियाद रखी जा रही है, वहां मूर्ति रखी जा रही है, तारीख रखी जा रही है? मैं सेकुलर किस्म के हिंदुओं से यह सवाल करूंगा, बल्कि आज भी मुझे मालूम है हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों हिंदू इस बात के कायल नहीं हैं कि मंदिर किसी मस्जिद को डेमोलिश करके नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह मस्जिद किसी मंदिर को ढा करके बनाने की इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। मैं इससे पहले भी कहा, आज भी बैतुल मुकद्दस के करीब फिलिस्तीन में चर्च बाकी है जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पूरा फिलिस्तीन फतह हो चुका था। चाहते तो आप चर्च को खत्म कर देते, आज तक चर्च मौजूद है, आज तक मौजूद। ईसाइयों ने हजरत उमर फारूक से कहा भी कि आप अंदर आए, नमाज पढ़ लें। आप अंदर जाने की बजाय बाहर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हैं। आपसे ईसाइयों ने पूछा कि आपने अंदर नमाज नहीं पढ़ी, क्या हमारी चर्च नापाक है? कहा नहीं, जमीन पाक हो, हम कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। महज मैंने इसलिए अंदर नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में आने वाली कौमें कहीं अपने अमीरुल मोमिनीन का मुसल्ला समझ करके तुम्हारी चर्च को ना गिरा दें। तुम्हारी चर्च में पूछ रहे हैं, यह है इस्लाम। मेरे अजीजों, चलो मस्जिद और मंदिर को एक तरफ रखो, लेकिन जिस तरह से आज नौजवान लड़कियों के रेप के केसेस जो बढ़े हुए हैं, छोटी बच्चियों के बलात्कार के जो केसेस बढ़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि यह जंगल राज कायम हो चुका है, जहां जंगल में दरिंदा जिसे चाहे अपने हवस का निशाना बना ले।
وہ بھی اتر پردیش کی زمین کا کھلا ہوا ناچ. ایک نوجوان 19 سال کی لڑکی کو 4 درندے پکڑتے ہیں, اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں, اس کی زبان کاٹتے ہیں, آنکھیں پھوڑتے ہیں اور اس کے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں. تقریباً 2 ہفتوں تک موت و حیات کے بیچ وہ لڑ رہی تھی اور مر گئی تو پولیس لا کر کے اس کو رات اپنے گھر والوں کو بھی نہ دے کر کے خود سے جلا دے. یہ ہے انصاف, یہ ہے ہندوستان کے عدلیہ کا نظام. اسی لیے میرے عزیزوں, میں جذبات میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو صرف اسی لیے کہ ہم اس زمانے میں آ چکے جہاں عدل کی طرف سے ہمیں اب کوئی توقع باقی نہیں رہی, امید باقی نہیں رہی. 2 دن قبل مجھ سے کئی لوگوں نے میسج کیا, دیکھیں فیصلہ آ گیا بابری مسجد کا. کہا یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہی ہمیں معلوم تھا, آنا تو یہی تھا. قاتل ہی کرسی پر بیٹھے تو وہ قتل کا کیا انصاف کرے گا, کیا انصاف کرے گا؟ ہمیں تو معلوم ہے جس نے میری چوری کی وہی میرا فیصلہ سنانے بیٹھا ہے, وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا. لیکن آج جو درد ہے ہمارے دل کا وہ انسانی جانوں کی اس طرح کے بلاತ್ಕಾರ اور ہتھیا, مرڈر, سوسائڈ, یہ تمام جو معاملات کثرت سے بڑھے ہوئے ہیں, اس کے لیے آج میرے عزیزوں بیدار ہو جاؤ اور اپنے اپنے ذہنوں کو پھر سے